Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Chanshazad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. Dear student of class 9, we discussed the introduction of Pakistan resolution, Lahore resolution in previous class. اور میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریزولوشن اور لاہور ریزولوشن دونوں ایک ہی قرارداد کے نام ہیں. شروع کے دنوں میں جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو ہندوؤں نے اس کا مذاق اڑایا اور لاہور ریزولوشن جو اقبال پارک میں پاس کیا گیا تھا، پیش کیا گیا تھا، اس قرارداد کو پاکستان ریزولوشن کہہ کر پکارنا شروع کر دیا. نہ صرف ہندو پولیٹیشین نے بلکہ ہندو نیوز پیپرز نے بھی ان کا مذاق اڑایا. اور اسی وجہ سے بعد میں مسلمانوں نے بھی 1945 اور 46 کے الیکشن اور اس سے پہلے جتنے بھی ایڈریسز ہوئے، اس سے پہلے جتنی بھی انہوں نے تقریر کی، انہوں نے اس کو لاہور ریزولوشن کی بجائے پاکستان ریزولوشن ہی کہا اپنی ایڈریس میں. تو اس ٹاپک کو اگر پاکستان ریزولوشن کے حوالے سے آئے پھر بھی، اور اگر لاہور ریزولوشن کے حوالے سے آئے تو پھر بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ریزولوشن اور لاہور ریزولوشن، لاہور اینڈ پاکستان ریزولوشن، اس کو لاہور ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دونوں ٹھیک ہیں. اگر دونوں ٹاپک میں سے ایک بھی آتا ہے تو آپ نے اس کو ایز اٹ از ہی لکھنا ہے. پھر آپ نے سب سے پہلے انٹروڈکشن اس میں مینشن کرنا ہے تعارف، اور تعارف میں آپ نے ان پرسنالٹیز کا ذکر کرنا ہے who participated in this resolution. آپ نے اس ریزولوشن میں ان پرسنالٹیز کا بھی ذکر کرنا ہے جنہوں نے اس قرارداد میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لکھ سکتے ہیں، اے کے فضل الحق کا لکھ سکتے ہیں، ظفر علی خان، مولانا ظفر علی خان کا نام لکھ سکتے ہیں، خلیق الزمان کا نام لکھ سکتے ہیں. تو کم سے کم یہاں پر 6 7 8 نام دیے گئے ہیں. 6 7 8 میں سے آپ کوشش کیجیے گا کہ 4 to 5 نیمز اس میں لازم لکھنے تو آپ کو پورے چاہیے، لیکن اگر کم بھی لکھیں تو 5 سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک کی فضل الحق انہوں نے پریزنٹ کیا، ٹھیک ہے، اینڈ unanimously it was passed by the all politicians and the political party. all India Muslim League نے اس کو پاس بھی کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سیشن میں پرسنالٹیز کے ہیں اور پھر اینڈ دین آفٹر وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دی بیک گراؤنڈ. تو بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے؟ پس منظر. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر اس کا یہ ہے، سب سے پہلے تو مسلمانوں کا جو ایک ریاٹ مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، سیکٹیرین ریاٹس جسے کہتے ہیں، سیکٹیرین ریاٹس اگینسٹ دا مسلمس اینڈ دا مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. تو سیکٹیرین ریاٹس جو تھے مسلمانوں کو ان ریاٹس کو بنیاد بنا کر بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا. تو یہاں پر سیکٹیرین ریاٹ کا ذکر کریں گے پہلے میں. دوسرے میں آپ نے ذکر کرنا ہے لو اسٹیٹس آف مسلمس، مسلمانوں کا لو اسٹیٹس. it was also become the cause and background of the Lahore resolution. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو wipe out the Muslim culture. آپ 19 اور 20 سینچری کے آغاز میں مسلمانوں کا جو کلچر ہے، ان کا کسٹم ہے، اس کو ختم کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہندوؤں کی طرف سے. It was also the background of Lahore resolution. Different periods, in the different periods, the different visionary signed about the partition of the subcontinent. ٹھیک ہے. آپ
साइंस ऑफ विजनरीज, जो विजनरीज के साइन थे वो, यानी इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी थे, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जलालुद्दीन सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी भी थे, ठीक है, मौलाना अब्दुल हलीम शर्रार भी थे, ज्योति रहमत अली भी थे, जिन्होंने नाउ और नेवर लिख कर लंदन में जब अपने दोस्तों के साथ क़याम पजीर थे, वहाँ पे क़याम कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने नाउ और नेवर एक पम्फलेट पे लिखा और फिर वो इंडियन पॉलिटिशियन के दरमियान तकसीम कर दिया। एंड द लास्ट वन लाहौर रेजोल्यूशन पास इन 1940, रेजोल्यूशन 1940। ये पॉइंट्स हैं बेटा जो आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। फिर कायद-ए-आज़म प्रेसिडेंशियल एड्रेस, कायद प्रेसिडेंशियल एड्रेस, कायद प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कायद-ए-आज़म के टू मेजर डायरेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स। एक तो ये उन्होंने डायरेक्शन दिया कि कई साल, ठीक है, मुस्लिम एंड हिंदूज आर द टू सेपरेट नेशंस according to their custom, culture, civilization and about the religion different from the Hindu। आप उसमें उन्होंने ये कहा कि इन्होंने यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि एक सेंचुरीज, ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो टू नेशन थ्योरी का दे रहे हैं, टू नेशन थ्योरी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर टू नेशन थ्योरी, ठीक है, और इसका डिमांड जो है, डिमांड ऑफ पाकिस्तान इज एन हिस्टोरिकल, ये एक हिस्टोरिकल डिमांड है, यानी वहाँ से आयरलैंड है, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस स्पीच में कहा कि आयरलैंड है, स्पेन है, उन तमाम के तमाम ममालिक ने, पुर्तगाल है, उन तमाम के तमाम ममालिक ने आज़ादी हासिल की इंग्लैंड से, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है, ब्रिटिश इंडिया is a subcontinent, it is not the country of homeland of a nation, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो किसी एक मज़हब का या किसी एक कौम की जो वहाँ पर रही है रिहाइश, या यहाँ एक कौम यहाँ पर आबाद नहीं रही, डिफरेंट कौम यहाँ पर आके आबाद होती रही हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे, इसमें टेक्स्ट ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन होगा, टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन। टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन में कायद-ए-आज़म का ये टेक्स्ट आप लोगों ने पूरा लिखना है कि नो कॉन्स्टिट्यूशन प्लान वुड बी वर्केबल और एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम अनलेस द ज्योग्राफिकल कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिट्स आर डिमार्केटेड ऑफ रीजन्स एंड विच शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी कि आपने कहा कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए, इसकी रीएडजस्टमेंट होनी चाहिए, और आपने ज्योग्राफिकली ये कहा कि इन इलाकों को मिलाकर पाकिस्तान और इन इलाकों को मिलाकर इंडिया में शामिल किया जाए, ठीक है, और यही मुसलमानों और हिंदुओं के लिए और इंडिया की बका के लिए बेहतर होगा। तो इसमें आप रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा करते हुए ये कहा कि रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर राइट्स फॉर द माइनॉरिटी है विद देयर कंसल्टेशन, जो भी मामलात होंगे मस्ट बी डिस्कस विद द माइनॉरिटीज, उनको माइनॉरिटी के साथ जरूर डिस्कस करें, एंड अरेंजमेंट thus should be made for the security of Muslims where they were in minority, और वहाँ पर जहाँ पर मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। एक जगह पर तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिक्स की बुक में ये कहा इन द लाहौर रेजोल्यूशन कि कोई मुसलमान में हिंदुओं के साथ और हिंदू मुसलमानों के साथ ना खाना खा सकते हैं, ना शादियाँ कर सकते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बहुत क्लियरली कहा कि ना शादियाँ होंगी, ना आप एक दूसरे के साथ खाना खा सकते हैं, यानी कि हिंदू एंड द मुस्लिम्स वर टोटली डिफरेंट एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द एनी इवेंट ऑफ द सोशल, ऑन द सोशल बेसिस, ऑन द रिलीजियस बेसिस एंड ऑन द मॉरल बेसिस। किसी भी जगह पर मुसलमान और हिंदू इकट्ठे न शादियाँ कर सकते हैं, न रह सकते हैं, न खा भी सकते हैं। ये स्विक्स की बुक में इन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर एक्सप्लेन किया है। रिएक्शन ऑफ द रेजोल्यूशन, इसमें सबसे पहले तो कांग्रेस ने इस पर रिएक्शन करते हुए ये कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानते, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और ब्रिटिश प्रेस जो है उसने ये कहा कि रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान चला द हिंदूज न्यूज़पेपर्स
द हिंदुस्तान टाइम्स, उन्होंने कहा कि मॉडर्न रिव्यू, इसमें अमृता बाजार, ठीक है, पत्रिका जो है रॉड एडिटोरियल अगेंस्ट प्लान ऑफ पार्टीशन, इसके बारे में उन्होंने ये लिखा। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया और इसके मजाक उड़ाए गए और ये कहा गया कि ये प्लान जो है ये दफन हो जाएगा कायद आज़म का। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एड्रेस पे, अपनी स्पीच में बार बार ये कहा कि ये ना ख़त्म होने वाला प्लान है। और फाइनली आज हम लोग आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। तो बेटा बात कहने की ये है कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि इंट्रोडक्शन में यू मस्ट इंक्लूडेड नेम ऑफ पर्सनैलिटीज, आपने पर्सनैलिटीज के नाम लिखे हैं। बैकग्राउंड में ये 4, 5, 6 हेडिंग्स मैंने आपको बना दी है। कायद आज़म प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 2 डायरेक्शन है, जिसमें डिमांड ऑफ पाकिस्तान और रिलेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है कि मुसलमान और हिंदू कई साल इकट्ठा रहने के बावजूद भी एक दूसरे में घुल मिल ना सके, ठीक है। इसलिए एक जगह पर ये भी है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हिंदुओं ने मुसलमानों की मिनिस्ट्रीज, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बाद हिंदुओं ने मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तस्लील करने की कोशिश की। वारदा विद्या मंदिर स्कीम के ज़रिए, तिरंगा झंडा और वंदे मातरम के ज़रिए, ये तमाम के तमाम ऐसे इंसिडेंट और इवेंट्स थे जिनको एक्सेप्ट करना मुसलमानों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। फेडरेशन को रिजेक्ट कर दिया गया लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर की फेडरेशन जो है, क्योंकि फेडरेशन में ये एक्सप्लेन किया गया था, ये बताया गया था कि मैक्सिमम जो दिए गए हैं इख्तियारात वो किसको दिए गए, मेजॉरिटी क्लास को दिए गए, और मैक्सिमम जो है वो इख्तियारात दिए गए वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए। इसलिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को रिजेक्ट किया बट उन्होंने 1935 के एक्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और कांग्रेस ने दोनों जमातों ने, दोनों पार्टीज ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये प्रेस में, और मैंने आपको शुरू में बताया कि इसका नाम लाहौर रेजोल्यूशन था, इकबाल पार्क में ये हेल्ड किया गया, लेकिन बाद में इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से याद किया जाने लगा। ये वही अखबारात हैं जिन अखबारात ने कायद आज़म और पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन का नाम फिर बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो कहलवाना शुरू कर दिया। तो बेटा बात ये है कि ये क्वेश्चन लाहौर रेजोल्यूशन एग्ज़ाम में बहुत, मेरे ख्याल में एग्ज़ाम में नहीं आया अभी तक ये क्वेश्चन, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। बात समझ आ रही है? बल्कि इसमें टेक्स्ट ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन का जो क्वेश्चन है, इट इज़ द आंसर नंबर ऑफ योर शॉर्ट क्वेश्चन 10। ये आपके 10वें सवाल का जवाब भी है। इसके अलावा जो 2 मेजर डायरेक्शन दी गई मुसलमानों को कायद आज़म ने दी लाहौर रेजोल्यूशन में, इट इज़ आल्सो आंसर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। मैं साथ साथ आपको एक्सरसाइज के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो बेटा इंशाल्लाह ये टॉपिक हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप उसको माइंड मैप के ज़रिए एक्सप्लेन करें या फ्लो चार्ट के ज़रिए एक्सप्लेन करें, लेकिन आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देना नहीं भूलना, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर एनुअल एग्जाम। आप लोगों के एनुअल एग्जाम में बहुत सा वक्त होगा आपके पास, तो आप इसको कर सकते हो। तो इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर दी है कि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आए हैं जो मैंने आपको बताया, जो आपकी बुक में ये सिर्फ बुलेट दिए गए थे और डॉट दिए गए थे। आपने इनको डॉट भी लिखना, आपने ये हेडिंग देनी है, ठीक है। सेक्रेटरियन रिवार्ड्स को, फिर द मुस्लिम सोसाइटी, वाइड ऑफ द मुस्लिम कल्चर, ये आपने हेडिंग्स देनी है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।